Welcome children. In last video we have discussed how to identify whether the transaction is economic or non-economic. That is, it is business transaction or not. That we have seen, and we have also seen different types of accounts. Today again very important video. The reason is here we are going to study what are the rules that which account is to be debited or which account is to be credited. Now hope all of you know the types of account which we have discussed in last period. So just see here. This chart I already gave you in last period. Now I have extended this chart and you will get whole details of this chapter from this chart only. So please prepare it, if possible take out printout and stick it in your room. Types of account we have seen. What do you mean by personal account? In personal account you can see different parties, means name. It can be related to debtor, it can be related to creditor, it can be related to owner, that is capital account and drawings account. CS Vidya Bharati school account. These are all names, and names means personal account. Okay. Examples we have already seen. Real account, all the accounts which are related to assets, we can call it as real account, or goods. Okay. Assets or goods. Goods means purchase, sales, purchase return, sales return, or any other asset. We can call it as real account. We have also discussed nominal account. Nominal account means all the accounts which are related to income and expense. We can call it as nominal account. Now we are going to move ahead. We are going to discuss the rules. Now which account is to be debited, which account is to be credited. Please listen carefully. This rule will help you. अगर ये रूल आपको याद नहीं रहा तो आगे आने वाले चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होना तय है. ठीक है, तो प्लीज फोकस. First rule for personal account, very simple. Personal account. Personal account means any person. It can be artificial or natural person. Ask the question whether the name, personal account में नाम होगा, याद है ना? Whether that name is receiver or giver. Whether that name is receiver or giver. If that name is receiver, we have to debit that account. If that name is giver, we have to credit that account. As simple as that. For example, sold goods of rupees 5,000 to Rahul. Sold goods of rupees 5,000 to Rahul. What is personal account here? Personal account is Rahul. Ask question, राहुल रिसीवर है कि गिवर है? क्या लगता है, गुड्स किसको मिले? राहुल को मिले ना, तो राहुल रिसीवर हो गया. और अगर राहुल रिसीवर हो गया तो हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट दी रिसीवर. सिंपल, डेबिट दी रिसीवर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1,000 फ्रॉम अमित. आई रिपीट, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1,000 फ्रॉम अमित. क्या नाम दिखाई दे यहाँ पे पर्सनल में? अमित. आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अमित रिसीवर है कि गिवर है? अमित रिसीवर है कि गिवर है? आपने अमित से खरीदा तो अमित कौन हो गया? गिवर. और गिवर के लिए क्या रूल है हमारा? ये रहा, क्रेडिट द गिवर. तो सिंपल, अमित का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. वीडियो रिवाइंड करो, फिर से सुनो, फिर आगे जाना. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट के, देन विल मूव. ओके, यू कैन सी हियर ट्रांजैक्शन नंबर 7. ठीक है. व्हाट इट इज? परचेज इज मेड ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम रमन. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन. रूल्स याद करो. और अगर रूल्स याद नहीं आएंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आगे आपको समझ में नहीं आएगा. अभी मैं 7th क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, बताओ कैश है कि क्रेडिट है? और अगर किसी को नहीं आ रहा है कि ये कैश है क्रेडिट है, तो पहले वीडियो नंबर, लास्ट वाला वीडियो नंबर 2 देख लेना, तभी यहाँ पे आना, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा. अगर ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तो अगला वीडियो समझ में नहीं आएगा. प्लीज फॉलो द लिंक. आई रिपीट, if you can't identify right now whether this 7 transaction is cash or credit, please see the old video first and then come here, otherwise you won't understand. लिंक होती है. आप कोई थ्रिलर मूवी देखने जाते हो और अगर इंटरवल में चले गए तो बोलो क्या स्टोरी समझ में आएगी?
आएगी समझ में? नहीं आएगी ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मूवी आपको पहले से देखनी पड़ती है ना। मूवी में तो क्या करते हो, पहले से जाके 10 आधा घंटा पहले जाके बैठ जाते हो, ऐड बैड सब देखते हो, तभी मजा आता है। पढ़ने में भी ऐसा ही है, हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ो, कोई भी लेक्चर कोई भी वीडियो मिस मत करो, वरना आगे की चीज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, now I consider that all of you have seen the old video and you all of you know what is cash and credit transaction, which we have discussed in last period. Plus all of you can identify the type of account which we have discussed in last video, right? So one thing is clear that purchase made of rupees 30,000 from Raman नाम दिया है और कैश वर्ड नहीं है, तो हमारा रूल कहता है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखो कंफ्यूज मत होना, टाइप अकाउंट डेबिट हो या क्रेडिट होगा वो अलग चीज है, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कैश ये ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और हमेशा याद रखना, जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा अंदर नाम आएगा। ओके, तो अभी हम इस ट्रांजैक्शन में हमारा पर्सनल अकाउंट कौन सा है वो देखते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, ये हेडिंग है नेम ऑफ अकाउंट के लिए। यहाँ आपको दो अकाउंट मिलेंगे, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट मिलेंगे, लेकिन हमारा पर्सनल अकाउंट कौन सा है वो हमें पहले देखना है। चलो ट्रांजैक्शन नंबर 7, यहाँ पे आपको पहला अकाउंट मिल रहा है रमन अकाउंट। ठीक है, हेडिंग याद रखना, क्या क्या आपको बनाना है ये टेबल आप बुक में बना दो। पहले तो ट्रांजैक्शन क्या है, पहला तो नंबर आएगा, मैंने ट्रांजैक्शन में नंबर दे दिया, नंबर, ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, डेबिट हो या क्रेडिट, अमाउंट और रीजन क्यों डेबिट या क्रेडिट होगा। तो चलो यहाँ पे रमन अकाउंट है। अब क्वेश्चन है रमन अकाउंट का टाइप क्या है, सीखा था हमने रमन अकाउंट, नाम, नाम यानी कि पर्सनल। चलो पर्सनल हो गया। अब मुझे क्वेश्चन है कि ये अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बोलो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। देखो क्वेश्चन, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रमन यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है, हमने परचेज किया। याद रखना जो भी ट्रांजेक्शन है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बोला है कि परचेज इज मेड तो समझ जाना हमने परचेज की। तो अगर हमने परचेज किए है तो रमन ने क्या किया, रमन ने हमें गुड्स दिए हैं। ठीक है, रमन ने हमें गुड्स दिए हैं, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है ये रहा, क्रेडिट दी गिवर। तो आप रमन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट। कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, कितने के गुड्स उसने हमें दिए हैं, अमाउंट, अमाउंट के कॉलम में कितने के गुड्स हमें दिए, 30,000। क्लियर। अच्छा, रीजन, रमन इज गिवर ऑफ गुड्स, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। चलो रीजन पता चला, ठीक है। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप पहले डेबिट वाला लिखेंगे बाद में क्रेडिट वाला लिखेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, अभी मैंने लिख दिया है लेकिन आगे याद रखना, आप पहला अकाउंट डेबिट लिखेंगे फिर क्रेडिट लिखेंगे। क्यों, इससे आपको जर्नल एंट्री करने में आसानी होगी। तो मैं इसको फिलहाल नीचे लिख रहा हूं। ठीक, अब फिर से हम अगले वाले रूल पे, अच्छा पर्सनल अकाउंट का एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दिखलाए 9th वाला, गुड्स ऑफ 8,000 सोल्ड टू नीला फॉर रुपीज 15,000। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि कैश वर्ड नहीं है और नाम दिया हुआ है देखो नीला, तो वो क्रेडिट हो गया। चलो अब हम नीला की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक अकाउंट हमें दिख रहा है नीला, तो मैं यहाँ पे नीला लिख रहा हूँ। आस्क क्वेश्चन, अब नीला अकाउंट पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आस्क क्वेश्चन, नीला रिसीवर है कि गिवर है, आस्क क्वेश्चन। चलो आंसर मिल गया, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 सोल्ड टू नीला, नीला को बेचा तो नीला रिसीवर हो गई, नीला रिसीवर हो गई। और रिसीवर के लिए क्या रूल है, डेबिट करना है आपने, क्या करना है, डेबिट। चलो सबसे पहले तो टाइप पर्सनल है और हम यहाँ पे लिखेंगे डीआर यानी कि डेबिट। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, कितने के गुड्स उसको बेचे, 15,000। ठीक है, रीजन, नीला इज द रिसीवर ऑफ
गुड्स, सिंपल। चलो आगे चले। ओके, होप पर्सनल अकाउंट्स टॉपिक इज क्लियर। पर्सनल अकाउंट यानी जहां पे नाम आएगा, लेकिन नाम तभी आता है जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन में नाम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी के लिए रूल्स बदलते रहते हैं, आगे आगे जाएंगे, मैं और डीप में जाऊंगा, अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, अब रियल अकाउंट क्या है? ऑल दी अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड असेट, ठीक है, गुड्स एंड असेट, वी कॉल इट एज रियल अकाउंट। तो अगर गुड्स और अकाउंट है तो आप फिर सवाल पूछो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर वो गुड्स और असेट बिजनेस में आ रहे, बिजनेस में आ रहे तो डेबिट करेंगे, अगर वो गुड्स और असेट बिजनेस से बाहर जा रहे तो क्रेडिट करेंगे। सिंपल, देखो, परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, चलो सिंपल, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, बोलो क्या करेंगे? चलो मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे लिख के दिखाता हूँ आपको। बीच में कुछ कनेक्शन कट हुआ, कोई बात नहीं। परचेज में दो अकाउंट है, सॉरी ये ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट है, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ठीक है, नाम नहीं है मतलब कैश। परचेज रिलेटेड टू गुड्स मतलब रियल अकाउंट, कैश रिलेटेड टू असेट मतलब रियल अकाउंट। चलो, तो परचेज में गुड्स अंदर आ रहे हैं, है ना, परचेज के तो गुड्स अंदर आएंगे ना, तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। और कैश में असेट बाहर जा रही है, क्योंकि गुड्स परचेज करोगे तो कैश देना पड़ेगा, बाहर जा रही, तो ये क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल पता चला? ठीक, अगले टॉपिक, नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मींस ऑल इनकम एंड एक्सपेंस, एज वी हैव सीन इन लास्ट वीडियो। सवाल ये आता है कि किसको डेबिट करेगी, किसको क्रेडिट करेगी? बहुत सिंपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर इनकम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, अगर एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट करेंगे, सिंपल। आई रिपीट, एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट, और इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट, सिंपल। एग्जांपल देता हूं, पेड सैलरी रुपीज 1,000, यू आर बिजनेसमैन, राइट, यू आर बिजनेसमैन, तो आपको सैलरी देनी है, तो यहां आपको दो अकाउंट फिर से दिखाई देंगे, एक सैलरी अकाउंट, और जब आपने पे कर दिया तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया ना, पेड, तो नेक्स्ट अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। क्लियर? चलो, सैलरी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, और अभी मैंने क्या बोला था, एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, करेक्ट, एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। चलो, दूसरा कैश, कैश का टाइप क्या है? अब सबको याद हो गया होगा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी एसेट और गुड्स के रिलेटेड, कैश एसेट है, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, सिंपल। तो ये एग्जांपल था हमारा सैलरी वाला, नॉमिनल अकाउंट का, ये एग्जांपल था रियल अकाउंट का। चलो, नॉमिनल अकाउंट का एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹500। चलो, आपको इंटरेस्ट मिला है, आपको इंटरेस्ट मिला है, और इंटरेस्ट मिला है तो आपके लिए क्या होगा? इनकम होगी। सबसे पहले यहाँ पे दो अकाउंट कौन से हैं? पहला अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट, चलो मान लेते हैं। चलो, एक और अकाउंट आपको मिल रहा है, कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश अकाउंट, बराबर। इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट इंटरेस्ट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? अभी मैंने बताया था ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंस को डेबिट करना है और इनकम को क्रेडिट करना है। आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपकी इनकम हो गई, तो इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, सिंपल। और कैश भी आपको मिला है, लेकिन कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया तो कैश को डेबिट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। हमेशा याद रखना, हर ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा,
अगर आपको एक भी आ गया तो दूसरा आपको आ जाएगा. क्लियर? Okay, so this we can call it as different rules for all debit and crediting. Again, I am repeating the rules in short. Personal account का rule क्या है? Debit the receiver, credit the giver. Simple. ठीक है? Real account का rule क्या है? Debit what comes in, credit what goes out. And nominal account का rule क्या है? Debit all expenses, credit all incomes. Expense and loss, incomes and gain. Simple. ये रूल आपको याद रखने हैं. एक्सरसाइज के सम में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले आपको ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे. तो लर्न करो और ये पूरा चार्ट आपके नोटबुक में बनाना. ठीक है? प्रिपेयर दिस चार्ट इन नोटबुक, देन ओनली यू विल गो अहेड. अगेन आई एम रिपीटिंग, सी ऑल द वीडियोस इन सीक्वेंस. चैप्टर नंबर 2 का वीडियो है पहला वाला, फिर दूसरा और ये तीसरा वीडियो. ठीक है? तो जो भी वीडियोस है यूट्यूब में अवेलेबल है, लिंक शेयर करके सीक्वेंस में देखो, प्रैक्टिस करो, बुक सामने रखो, पेन हाथ में रखो, लिखो, तब आपको चीजें समझ में आएगी. और एक एक चीज बार बार देखो, वीडियो बार बार देखो, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखो, तब जाके ये चीज दिमाग में बैठेगी. अगर ये चीज दिमाग में बैठी ना, तो आपको आगे वाली चीजें समझ में आएगी. कोई डाउट हो मुझे आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है? ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी, मैंने सिर्फ आज बेसिक्स बताए. तो as we have discussed the basics, the sums or exercise practice sums we are going to start it in next video. But see this properly, and I want all of you to draw this chart in your notebook. Learn it by heart. If possible, take out, print out, stick it wherever you are sitting for studying. Very important chart. Okay, chalo, I am stopping this video. In next video, we'll start with sums. Okay, thank you all of you.